آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Overview of the webinar. Okay, this is me, Dr. Myra Ruth. I'm working lecturer as an Advanced Institute of Health Sciences. So we will go through these points today. At this session, the experts will come. Even our CEO will come for the opening remarks. Our principal will come. Then facilitators हमारे जो biology और physics, chemistry और English के expert teachers हैं वो आएंगे, आपको guidelines provide करेंगे. We will been through a very quick tour to the Advanced Institute of Health Sciences ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ से बोल रहे हैं, what we are actually, ताकि आपको इस अदारे का भी कुछ पता चल जाए. At the end of the session, we have the question answers time. आप जो questions हैं वो कर सकते हैं. And जो हम लोगों ने आपसे promise किया था कि हम आपको एक mock test देंगे जो कि exact reflection होगा Shizambo test की. Next, we will go on the objectives. Before objectives, I would like to invite Dr. Iftikhar Shehzad, the CEO of Advanced Institute of Health Sciences. He had experience more than 15 years. Not internationally, also located internationally. Welcome you, sir. बहुत शुक्रिया, Dr. Myra Ruth. My name is Dr. Iftikhar Shehzad. I'm a physical therapist by training. Here, I would like to take a few moments of your time and walk you through the facilities that we are offering at Advanced Institute of Health Sciences, what Advanced Institute of Health Sciences is, and how we will be helping you today through this webinar. So please bear with me for a few moments. आपको प्रेजेंट करने के लिए मैंने कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले तो मैं एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद के बारे में बताता चलूं. एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2021. Our focus is on providing strong knowledge base to our students. We also focus on instilling the ability of care with compassion in all of our students, and then making them able to strive for excellence, not only throughout their academic career, but after their academic career as well. किसी भी फील्ड में, चाहे वो एलाइड हेल्थ साइंसेज हो या कोई और फील्ड हो, उसमें अभी जैसे यहाँ पे डिस्कशन हो रही थी कि कार्डियक परफ्यूशनिस्ट बेहतर है या बीएस डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट बेहतर है, तो बेहतर वो होगा जिस फील्ड में आपने एक अच्छी नॉलेज जो है वो हासिल की होगी. आपने जस्ट जैसे डिग्री, जैसे आजकल कहा जाता है कि डिग्री इज अ रिसीट ऑफ the payments that you have made to the university, आप उस मॉडल से नहीं गुजरे हो, बल्कि आपका जो यूनिवर्सिटी का टाइम गुजरा हो उसमें आपने अपने फील्ड के बारे में प्रॉपर नॉलेज जो है वो हासिल किया हो. फिर दूसरी बात जो है, जैसे कि मैंने अर्ज किया अभी थोड़ी देर पहले
कि हमारा ताल्लुक है एलाइड हेल्थ साइंसेज से। जो एजुकेशन हम ऑफर कर रहे हैं वो एलाइड हेल्थ साइंसेज के शोबे में है। तो हेल्थ साइंसेज के अंदर वी डील विद ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स भी वो जिनको हेल्प की और मदद की ज़रूरत होती है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की। तो वो जो हम अपनी सर्विस जो प्रोवाइड करें वो विद कंपैशन हो, मतलब कि हमारे अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि हम अपने मरीज़ों को जो सर्विस दें उसमें एक उनके साथ एहसान वाला जज्बा हो, उनके साथ नेकी वाला जज्बा हो। तो यकीनन हमारे जो पेशेंट्स हैं वो भी फिर हमारी सर्विस को अप्रिशिएट करेंगे। तीसरी चीज़ एक्सीलेंस। हमेशा कोशिश करना कि हम अपनी फील्ड में, जो भी हमारा फील्ड हो, चाहे वो नर्सिंग का शोबा हो, चाहे वो फिजिकल थेरेपी, डेंटल टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी या कोई और हेल्थ केयर का शोबा हो, तो उसमें हम अपनी नॉलेज को जो है वो हर रोज़ इम्प्रूव करें, और इम्प्रूव करने की हमारे अंदर एक तड़प और एक ख्वाहिश हो। तो एडवांस इंस्टीट्यूट के अंदर हमारी कोशिश है कि हम इन चीज़ों को, ये जो तीन बुनियादी वैल्यूज़ जो आपके सामने रखी हैं कि नॉलेज, स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस, केयर विद कंपैशन और स्ट्राइविंग फॉर एक्सेलेंस। अब मैं आऊँगा इस तरफ के एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है इसकी एक्रेडिटेशन और एफिलिएशंस कहाँ कहाँ से है। एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन से प्रॉपरली एक्रेडिटेड एक इदारा है। 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इदारे ने हायर एजुकेशन कमीशन से एक एनओसी जो है वो हमें मिला हुआ है। उसके बाद हम जो हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये मैं बताता चलूं कि जितने भी इस्लामाबाद के अंदर प्राइवेट एफिलिएट इंस्टीट्यूट्स हैं वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ उनको एस पर एचईसी रूल्स जो हैं वो एफिलिएट होना चाहिए। इस्लामाबाद के अंदर जितने भी एफिलिएट इंस्टीट्यूट्स हैं वो किसी और यूनिवर्सिटी से एचईसी के रूल्स के मुताबिक जो हैं वो एफिलिएट नहीं हो सकते। हो सकता है कि कोई ऐसे इदारे हों कि जो बहावलपुर या सिंध के किसी यूनिवर्सिटी से या कोई बलूचिस्तान और कश्मीर की किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो। तो मैं ये बताता चलूँ यहाँ पे कि वो एचईसी रूल्स जो हैं, जो जुरिस्डिक्शन यहाँ इस्लामाबाद में है, वो सिर्फ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का है। किसी और यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद के अंदर जुरिस्डिक्शन नहीं है। जैसे कि हमारे केपीके के स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि केपीके के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट होना पड़ता है। तो इस तरह पंजाब के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जिस यूनिवर्सिटी का जुरिस्डिक्शन है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जिसके टेस्ट की प्रिपरेशन के सिलसिले में आज हम यहाँ पे सब जो हमारी टीम मीटिंग है इसके अंदर हम सब जमा हैं। तो वी आर एफिलिएटेड विद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर आप उनके वेबसाइट पे जाएंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो हैं उसमें आपको हमारा नाम जो है वो लिस्ट में नंबर 1 पे इंशाल्लाह मिलेगा। फिर उसके बाद हम आते हैं कि एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इज ड्यूली एक्रेडिटेड बाय पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल। वो स्टूडेंट्स जो नर्सिंग में एडमिशन के ख्वाहिशमंद हैं उनको ये मालूम होगा और मालूम होना चाहिए कि जिस अदारे में भी वो दाखिला लें उसको पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से भी एफिलिएट होना या उनसे एक्रेडिट होना जो है वो मैंडेटरी है, वो ज़रूरी है। एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज उनसे भी एफिलिएटेड है, और अगर उनके भी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उनके वेबसाइट के ऊपर भी एफिलिएटेड इदारों का लिस्ट जो है वो मौजूद है। उसके अंदर जो फेडरल के जो इदारे हैं उसमें गालबन 59 नंबर पे एडवांस इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल्स। नर्सिंग के अलावा जो एलाइड हेल्थ प्रोफेशंस हैं जिसमें डीपीटी हो गया, डेंटल टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, बीएस कार्डियक परफ्यूजन, बीएस कार्डियोलॉजी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं they need to be accredited. The institute providing them needs to be accredited by Allied Health Professionals Council. तो एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जो हैं वो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स काउंसिल से भी प्रॉपरली एक्रेडिटेड है। अगर उनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे और वहाँ पे एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट्स के आप नाम देखेंगे तो मेरे ख्याल में कोई 85 नंबर या 83 नंबर पे आपको उधर एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है वो इंशाल्लाह मिलेगा। इसके बाद आते हैं पंजाब नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड। जो नर्सिंग के अंदर जो डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं उसके लिए नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड से एफिलिएशन ज़रूरी होती है। जैसे हम LHV और CMW वगैरह के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं तो उसके लिए हम नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड से भी एफिलिएटेड हैं। एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज अपने स्टूडेंट्स की क्लिनिकल रोटेशंस के लिए, क्लिनिकल रोटेशंस बहुत ही अहम
है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एलाइड हेल्थ साइंस के शोबे में आते हैं, नर्सिंग में आते हैं, डीपीटी में आते हैं, रेडियोलॉजी, डेंटल टेक्नोलॉजी, किसी भी शोबे में आते हैं, यू नेम इट, उसके लिए क्लिनिकल एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़रूरी है। यानी कि ये कोई ऐसा शोबा नहीं है जैसे दीगर कुछ शोबे होंगे शायद उर्दू में और या इंग्लिश लैंग्वेज में, आपको कहीं पे जाके उसको प्रैक्टिस करने की शायद ज़रूरत ना हो। आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप नॉलेज हासिल करते हैं वही काफ़ी होती होंगी, लेकिन एलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर आपको अच्छे हॉस्पिटल्स तक एक्सेस होना चाहिए, जहाँ पे आप जाके जो नॉलेज आप गेन करते हैं उसको आप प्रैक्टिस कर सकें, आपको एक क्लिनिकल एक्सपोजर मिल सकें। एडवांस इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स को इस वक्त 3 मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स के लिए, क्लिनिकल रोटेशंस के लिए भेजता है, जिसमें सबसे पहले वतीम डेंटल एंड जनरल हॉस्पिटल है, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट के बिल्कुल करीब है, 4-5 किलोमीटर के फासले पे हैं। इट्स अ 505 बेड्स टीचिंग हॉस्पिटल। जो वतीम मेडिकल कॉलेज है उनका ये टीचिंग हॉस्पिटल है, तो हमारा उनके साथ एमओयू है, हमारे स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद आता है अलखिदमत राजी हॉस्पिटल, ये भी हमारे इंस्टीट्यूट के करीब है, और यहाँ पे मतलब कि बेतहाशा एक डाइवर्स किस्म की जो है यहाँ की पेशेंट पॉपुलेशन है। तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पे भी जाते हैं अपनी क्लिनिकल रोटेशंस के लिए। तीसरे नंबर पे गल्फ केयर हॉस्पिटल, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, सर्जरीज वहाँ पे होती हैं, गायनी की सर्विसेज हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो वहाँ पे भी हमारे स्टूडेंट जो हैं वो क्लिनिकल रोटेशंस के लिए जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पे आपको ऐसे इदारे मिलेंगे, मैं किसी की उसमें नहीं जाना चाहता, आई वुडंट नेम एनीवन, लेकिन 4 साल गुजर जाते हैं और बच्चा जो है वो कभी एक दफ़ा भी उसको हॉस्पिटल जाने की का मौका नहीं मिलता, उसको पेशेंट को ऑब्जर्व करने का और वहाँ पे जो उसने अपना नॉलेज जो थ्योरेटिकल हासिल किया होता है उसको अप्लाई करने का कोई मौका नहीं मिलता। एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में हमारे इस चीज़ पे फोकस है, और हम इस चीज़ को हम ये हमारे नज़र के सामने है और उस पर हमने फोकस किया हुआ है कि हमारे बच्चे जो हैं वो क्लिनिकल रोटेशंस के लिए बाकायदगी से जाएं। फिर हम फेडरल बोर्ड के साथ भी हमारी एफिलिएशन है, और हमारे कुछ 2 साला डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो कि फेडरल बोर्ड के साथ जो हैं वो हमारी एफिलिएशन है उनके लिए, जैसे डिप्लोमा इन नर्सिंग वगैरह वगैरह। अब मैं क्विकली जो है आपको अपनी हमारी जो लीडरशिप है, देखें किसी भी इदारे का जो स्टैंडर्ड है उसको उसकी लीडरशिप के मायार से जो है वो जांचा जा सकता है। एडवांस इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं है कि ये कोई किसी सेठ ने आके कोई इदारा खोल लिया हो और वो उसको अपनी मर्जी से चला रहा हो। आपके यकीनन इल्म में होगा कि बहुत सारे इदारे ऐसे होते हैं कि जिसमें इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, पैसे उनके पास थे और उन्होंने किसी प्लाजे को जो है जनाब वो नर्सिंग कॉलेज का नाम दे दिया, किसी ने कोई 2 घरों के मिला के उसको नर्सिंग या डीपीटी कॉलेज का नाम दे दिया, और किसी ने कोई किराए पे कोई और जो है वो गोदाम वगैरह को लेके कॉलेज में कन्वर्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस इंस्टीट्यूट इस तरह का इदारा बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड का इदारा है। और हमारी जो लीडरशिप है, जो एडवांस इंस्टीट्यूट की लीडरशिप है, जो हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, वो इसको यकीनन आपको इस चीज़ का एक आइडिया देगा, वो एक सबूत है हमारे प्रोफेशनल होने की, और हम मायार को किस तरह से मेंटेन करते हैं। मैं क्विकली अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को इंट्रोड्यूस करूंगा। हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन जो हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खान साहब हैं, जो कि शिफा यूनिवर्सिटी के जो हैं वो वाइस चांसलर के तौर पे इस वक्त काम कर रहे हैं, और इस्लामाबाद क्या बल्कि पाकिस्तान के एक मारूफ वेस्कुलर एंड जनरल सर्जन हैं, वो इस इदारे के चेयरमैन हैं, और यहाँ के स्टैंडर्ड और सारी चीज़ों को यकीनन उनकी रहनुमाई के अंदर हम उसको आगे लेके चल रहे हैं। हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर के जो मेंबर्स हैं उसमें सबसे पहले सर फहरिस्त प्रोफेसर डॉक्टर बहादुर शाह साहब हैं, जो कि रिटायर्ड वाइस चांसलर रहे हैं एक्टिंग हज़ारा यूनिवर्सिटी के, इसके अलावा गोमल यूनिवर्सिटी में डीन रहे हैं। सारी ज़िंदगी इनकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और तालीम के साथ वो मुंसलिक रहे हैं। मोहम्मद इदरीस अहमद ख़ान साहब हैं हमारे बोर्ड के मेंबर, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं फॉरेस्ट्री के शोबे से, और उनको भी मैनेजमेंट का वसी एक्सपीरियंस है। माई सेल्फ डॉक्टर इफ्तिखार शहजाद, अल्हम्दुलिल्लाह फिजिकल थेरेपी के शोबे में आई एम ए लाइसेंस्ड फिजिकल थेरेपिस्ट इन द यूएस स्टेट ऑफ मिशिगन के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर मोर देन अ डेकेड आई हैव प्रैक्टिस्ड एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के अंदर एज अ डिपार्टमेंट हेड रिहैब डायरेक्टर के तौर पे 3 साल वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर्व कर चुका हूँ, और अभी एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज को एज ए सीईओ देख रहा हूँ। डॉक्टर हमीद मुमताज़ दुरानी, अनदर very successful educationist by profession. He is an MBBS doctor pursuing his PhD in public health, और मुख्तलिफ जिम्मेदारियों में WHO में और मुख्तलिफ जो जिम्मेदारियां हैं मेडिकल एजुकेशन के साथ ये वाबस्ता रहे हैं।
अपना हॉस्पिटल चलाने का इनका एक्सपीरियंस भी है माजी का, और अभी जो है वो एजुकेशन से मुंसलिक है। मिस लमीरा अनवर जो कि हमारी नर्सिंग की प्रिंसिपल हैं, शी इज़ अ फुल टाइम प्रिंसिपल। यहाँ पे आप जिस दिन भी आएंगे इंशाल्लाह आपकी उनसे मुलाकात हो सकेगी। ऐसे नहीं है कि वो किसी कोई विजिट के लिए जो है वो पीएनसी की या कोई ऐसे आई हुई है और जनाब वो विजिटिंग फैकल्टी थी और चली गई। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस इंस्टीट्यूट में प्रॉपर क्वालिफाइड फैकल्टी अल्हम्दुलिल्लाह फुल टाइम हर वक्त मौजूद रहती है। सो मिस नबीला अनवर इज़ आवर प्रिंसिपल. She has completed her Masters of Nursing from Aga Khan University. अभी कल मैं सुन रहा था आगा खान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के एक वेबिनार को, जिसमें वो कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर शायद 50 नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं कि जिसको आगा खान यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स हैं वो लीड कर रहे हैं। और जब उन्होंने ये कहा कि मुल्क भर के 50 इदारे ऐसे हैं, तो मुझे एक तरह से खुशी महसूस हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है इसको भी आगा खान यूनिवर्सिटी, जो कि एक मेडिकल शोबे की तालीम के हवाले से एक जाना माना नाम है, उसकी एक ग्रेजुएट जो हैं वो इस तालीमी इदारे को भी लीड कर रही है। सो वी आर वन ऑफ दोज 50 इंस्टीट्यूट जिसको आगा खान यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील और ग्रेजुएट एलम्स जो हैं वो लीड कर रहे हैं। सो मिस नबीला अनवर जो कि प्रिंसिपल हैं और हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मेंबर भी हैं। अभी मैं क्विकली नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में आई विल ट्राई टू मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल अपने कोर्सेज वो आपके साथ शेयर करूंगा। बीएस एंड डिप्लोमा जो हम ऑफर कर रहे हैं, वी आर ऑफरिंग डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी विच आई एम श्योर यू गाइज नो के 5 years डिग्री प्रोग्राम, डॉक्टरेट डिग्री। और उसके बाद हमारे पास है बीएस नर्सिंग 4 year 8 semesters प्रोग्राम, बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी, बीएस रेडियोलॉजी एंड बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये वो 5 बीएस प्रोग्राम्स हैं जो हम करंटली ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा भी इंशाल्लाह फ्यूचर में हम मजीद प्रोग्राम्स भी ऐड करेंगे। डिप्लोमा साइड पे अगर आ जाएं, 2 years डिप्लोमाज हैं जो कि मैट्रिक बेस पे ऑफर किए जाते हैं। कुछ के लिए साइंस मैट्रिक चाहिए, कुछ के लिए मैट्रिक विद आर्ट्स भी एक्सेप्टेबल होता है, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है जो आजकल सबसे समझ लें पॉपुलर जा रहा है वो है डिप्लोमा इन नर्सिंग। 2 साल डिप्लोमा है, इक्विवेलेंट टू एफएससी प्री मेडिकल है, फेडरल बोर्ड इसको ऑफर कर रहा है। फ्यूचर में ये भी एक बीएसएन के लिए समझ लें कि एक शॉर्टकट, एक राउट जो है वो बन जाएगा। उसके बाद जो है एलएचवी, कम्युनिटी मिडवाइफ, सर्टिफाइड नर्स असिस्टेंट और 9 दीगर ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिसमें डिस्पेंसर है, एमएलटी है, डेंटल टेक्नोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, साइकोलॉजी है। सो 9 और मुख्तलिफ डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं। आज के वेबिनार में जो हमारा फोकस, ये मेरी गुफ्तगू के बाद जो रहेगा वो सारा फोकस्ड होगा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है उसकी प्रिपरेशन के लिए। हम आपको ये जो सब्जेक्ट्स हैं समझ लें कि उसका जो करिकुलम है आज की निशिस्त में कोशिश करेंगे कि उसका एक क्रैश कोर्स टाइप आपको कराया जाए। 3 चैप्टर्स जो सिलेबस हैं उससे क्विक आपको एक गो थ्रू दिया जाए। एट द एंड ऑफ द सेशन हम आपके साथ एक मॉक टेस्ट शेयर करेंगे जो कि आप अपने फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आप बैठ जाएं, एक कागज और पेपर पेन जो है आपके पास ऑलरेडी होगा, उसके ऊपर 1 to 100 आप लिखें और आप क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो लिखें। हम आफ्टर 2 hours आपके साथ उसकी की भी शेयर कर लेंगे। ट्राई टू अटेम्प्ट दैट टेस्ट इन दी रियल टेस्ट एनवायरनमेंट, मतलब कोई आपकी डिस्ट्रैक्शन ना हो, फोन पास ना हो, फोन बंद हो। उसके बाद हम आपके साथ एक एमसीक्यू बैंक जो है वो 390 क्वेश्चंस का वो भी शेयर करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, उस पर भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन। इंशाल्लाह इट्स गोना बी बेनिफिशियल। हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की है कि आपको हेल्प किया जाए। अगर कोई पॉइंट हम इस वेबिनार में आपका एड्रेस ना कर सकें, व्हाट्सएप नंबर्स आपके पास हैं, आपके एक पूरा सेट ऑफ नंबर्स आपके पास शेयर किया गया है, उस पर आप हमारे पास रब्ता भी कर सकते हैं और वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट इंशाल्लाह इस टेस्ट या आपके आगे फ्यूचर काउंसलिंग के हवाले से कोई भी चीज़ हो, वी आर हियर टू हेल्प। थैंक यू सो मच एंड नाउ आई विल मूव इट ओवर टू डॉक्टर मायरा रूथ फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. Thank you so much. प्लीज काइंडली आप लोग थोड़ा वेट करें, जो कमेंट्स आ रहे हैं प्लीज, हमें पता है आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है और हम भी अपना बहुत वैल्यूएबल टाइम देके आपके पास आए हुए हैं ना। एंड वी हैव had prepared this whole webinar for last 10 days. तो ये आप लोग के लिए हम कर रहे हैं एंड प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें। Now we will come on the objectives of the webinar.
the screen will share to you guys. ओके, जैसे स्क्रीन आपके साथ आ रही है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। ऑब्जेक्टिव्स हमारा मेन गोल ये है कि हम जो एस्पायर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड कर सकें अबाउट द स्ट्रक्चर, फॉर्मेट एंड द कंटेंट्स, कि कैसा पेपर आने वाला है। We also want to familiarize about the key subjects like biology percentages, chemistry, physics, and English, Islamic studies, and Pak studies. We want to share you with the effective strategies कि हम आपको शेयर करना चाहते हैं कि कैसे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस चीज पे फोकस करना है, कैसे स्ट्रेस को मैनेजमेंट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अ रूटीन थिंग। जब टेस्ट होते हैं तो वी नो दैट इट्स आपके जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, द टीचर्स विल गाइड यू कि वो एक्टिव हो जाता है। वी ऑल्सो वांट टू मोटिवेट यू and encourage a student to pursue career in the allied health sciences। सर ने, साइड सखार शहजाद ने बहुत डिटेल से आपको इस चीज के बारे में बता दिया कि क्या इसकी फ्यूचर jobs opportunities हो सकती हैं allied health sciences की। Now we also want to share some guidance about the study resources scheme और कैसे आप prepare कर सकते हैं अपने इसको। एक और चीज, काफी कमेंट्स आ रहे थे इनबॉक्स में कि आप हमें एक PDF शेयर कर सकते हैं, तो यस इंशाल्लाह वी विल शेयर यू। जो लोग राब्ता करेंगे और जो शेयर करना चाहते हैं, दिस इज द बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेबिनार, जो कि मैं आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हमारा मेन गोल यही है कि जो पार्टिसिपेंट आए हैं वो अच्छे से अपना अटेम्प्ट कर सके एग्जाम, और जो उनका डिजायर स्कोर है वो उसको गेन कर सके। एंड जो PDF है आपके साथ वो भी शेयर कर दी जाएगी। जो आपके पास नंबर्स पहले से शेयर कर दिए गए हैं, वो टीम उनके साथ आप राब्ता कर सकते हैं, वो आपके साथ PDF जो बैंक है हमारे पास MCQ बैंक, वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। नाउ आई विल इनवाइट आवर एक्सपेक्टेड प्रिंसिपल, एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। शी विल गाइड यू टू दी वेरी amazing tips and tricks for how to attempt the Shizambo test. Over to Ma'am Nabila. Assalamu alaikum students. Yes, sir, slide. Next. Okay, student. Today I will guide you about some basic guideline that how you can attempt your paper and how you can prepare yourself for entrance test. First of all, time management. Time management is actually a basic skills that can help you to perform well in your entrance test. So how can you time manage? You can manage your time during your preparation time. जब आप अभी preparation कर रहे हैं तो आप लोग timer लगा के जो भी आपके MCQs हैं, जो भी आप डिफरेंट सोर्सेज यूज करें, वहां से आप कर सकते हैं, ताकि आपको जब लास्ट में एंट्रेंस टेस्ट आपका हो तो उस टाइम आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो। एंड देन एलोकेट योर टाइम फॉर ईच सेक्शन एंड क्वेश्चन, and don't stuck on one question for the too long time. If you are not understanding the wording or misunderstanding about the anything, so don't stuck on that question. You can move on to the next question. After that might be आप 10 to 20 questions कर लें तो आपके वापस जो है recall हो जाए, then you have to attempt that one question. And second thing is practice regular. How can you practice regular? Practice regular past papers and mock tests. You know, practice is the key to success. Solve past paper, sample papers, mock tests, and that will improve your speed, accuracy, and problem solving skill. That how you can manage your time, how you can solve your paper.
एंड वन थिंग इज व्हेनेवर जब भी आप कहीं भी आप कोई भी एंट्रेंस टेस्ट आप देने जाएं तो यू शुड नो अबाउट योर फॉर्मेट, understand the structure, questions and rules about your format, about your entrance test, and that will increase your preparation time, that will increase your enhancing your confidence and your problem solving skills. And use quality material. Don't take a material from a different website. You can utilize yourself in quality study material like study textbook, reference book, and if you are using your online sources, that should be recommended by your experienced teachers. And always you can analyze yourself for your weak areas. For example, some students are intelligent in bio and chemistry, and some and weak in the physics. So you can allocate extra time to strengthen your understanding of those topic and of the particular subject. Give extra time on weak areas and evaluate your practice test result carefully to pinpoint your area of the weakness. How can you evaluate? You can whenever you have read and you are prepare yourself for one chapter, so at the end of the chapter you can evaluate yourself by giving different type of the MCQs, by taking on your own self test, and then you can allocate your extra time to strengthen your understanding of those topic where you are the weak. And some of the smart strategies that will be helpful in your exam day, during your exam, like you can read carefully and eliminate the wrong answer, because pay close attention to the wording of the question to avoid the misinterpretation. Some of the students had the problem, they are not understand the question. जब आपको पहले से क्वेश्चन की वर्डिंग या क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं वो अगर आपको नहीं समझ आएगी, आप एकदम से आंसर के ऊपर जंप कर जाते हैं, तो आपके बहुत से ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप जो है ना रॉन्ग क्लिक कर दें। और अपने अगर आपको एक चीज की वो उसकी अच्छे से समझ नहीं आ रही, तो आप उनको ट्राई करें कि आप उनकी इनकरेक्ट ऑप्शंस को जो है ना बाय गेस आप इनकरेक्ट आंसर जो है ना उनको आप क्रॉस करते जाएं, तो लास्ट में जो आपके पास आ जाता है वो आपका करेक्ट आंसर होता है। एंड डोंट लीव द क्वेश्चन ब्लैंक। मेक श्योर कि आप अपना कोई एजुकेटेड गेस यूज कर लें, उससे आप जो है ना लास्ट में आप ऑप्शंस करके तो आप उसको जो है ना बबल्स को फिल आउट कर लें, बिल्कुल भी जो है आप उसको ब्लैंक मत छोड़ें। During or day of the entrance test, yeah, during entrance test, stay calm down and confident, because you should know that you can maintain your positive attitude and trust on yourself and your preparation. आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैंने FSC की है, मैंने मैट्रिक की है, सो आई कैन डू इट। इससे आपकी कैपेसिटीज आपकी इम्प्रूव होती हैं। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, और जो भी आपकी कुछ स्पेशल होली कुरान की वर्सेस होती हैं वो आप रीड आउट करें, इससे आपकी कॉन्फिडेंट लेवल जो है ना इंक्रीज हो जाएगा। और लास्ट में अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने आंसर को दोबारा से रिव्यू करें, और मेक श्योर करें कि जो भी आपको इन्विजिलेटर की तरफ से टाइम की मिल रही है, वार्निंग मिल रही है, तो पे अटेंशन टू द टाइम वार्निंग एंड एडजस्ट योर प्लेस अकॉर्डिंगली, कि आपने कितनी टाइम में कैसे करना है, क्योंकि आप एक में स्टक हो जाते हैं तो आपकी वो टाइमिंग आपकी रह जाती है। और कुछ चीजें हैं जो बहुत मेन है, दैट लाइक जो हमारे मेंटल और फिजिकल स्टेटस हेल्थ के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपको मोटिवेट रखती हैं, आपको कंपैशनेट रखती हैं और कंसंट्रेट करती हैं जो आप लोगों की हेल्थ के ऊपर। वो ये है कि स्टूडेंट्स जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आप अपने जो है मील टाइमिंग को, इन सारी चीजों को आप स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे आपकी क्या है, फिजिकल जो आपकी हेल्थ होती है वो आपकी डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। जब आपकी फिजिकल हेल्थ डाउन होना स्टार्ट होगी तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अल्टीमेटली डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज इन डेज में आप जो है आप क्या करें, जंक फूड से तो बिल्कुल अवॉइड करें, बिकॉज अगर आपको एसिडिटी स्टार्ट हो गई, आपकी कोई जो है स्टमक इश्यूज और स्टार्ट हो गए, तो फिर आपकी वो भी टाइम जो आप प्रिपेयर करें आपकी वेस्ट हो जाएंगे। ज्यादा ट्राई करें कि आप लोग फ्रेश वेजिटेबल, जूसेस और इस तरह की चीजें जो होममेड हैं वो आप ज्यादा से ज्यादा खाएं। ये नहीं कि होल डे आप जो है अपने आप को एक ही जगह स्टक कर दें, प्रिपरेशन नहीं, आप जो है ब्रेक्स लें, थोड़ा सा आउट
आउटसाइड आप चलें, डीप एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज करें, म्यूजिक अगर आपको लाइक करते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप वहां पे हो जाएं। अपने आप को आपने मोटिवेटेड रखना है ना, और जो आपके स्पेसिफिक टास्क है उनके ऊपर आपने जो है ना आपका माइंड उन्हीं के ऊपर होना चाहिए कि अभी मेरा स्पेसिफिक टास्क ये है कि मैंने शिजेम्बो का एंट्रेंस टेस्ट पास आउट करना है। तो शिजेम्बो का एंट्रेंस टेस्ट पास आउट करने के लिए आपको सबसे पहले तो ट्रिक्स आनी चाहिए कि आपने उसको कैसे सॉल्व आउट करना है। और बिफोर द डे ऑफ शिजेम्बो एंट्रेंस टेस्ट आपने अपनी प्रॉपर जो है कोई भी एंट्रेंस टेस्ट हो जाए, लाइक शिजेम्बो है, एमडी कैट है, जहां भी आप जा रहे हैं उसके स्टूडेंट का ज्यादा होता है लाइट लेट नाइट तक जो है ना वो सोते नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि मॉर्निंग में उनकी कंसंट्रेशन नहीं होती अपने टेस्ट के ऊपर। अर्ली नाइट आप लोग अपनी प्रॉपर फुल अपनी स्लीप पैटर्न जो है अपना फुल जो है वो करके आए, अपनी नींद पूरी करके आए, मॉर्निंग में उठें, फ्रेश हो जाएं, ब्रेकफास्ट करके अपने आप को सही कॉन्फिडेंट की तरह आप लोग अपना करने आए। और जब भी आप अपना एग्जाम के लिए आते हैं तो अपनी आपने प्रिपरेशन सारी चीजें आपकी पहले से हो जानी चाहिए। उसी टाइम कुछ टाइम पहले आप अपनी बुक्स को बिल्कुल साइड पे रखते हैं एंड माइंड को मेंटली एंड फिजिकली यू शुड बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। ये कुछ जनरल रूल्स हैं, अगर आप इनमें से कुछ भी फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी सक्सीड इन योर एग्जाम। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you so much for amazing tips and motivative words. Now, I will invite the subject specialist. बायोलॉजी के सर आएंगे भी, सर गोहर अली, मिस्टर गोहर अली. He had experience more than 10 years in academic fields and critical care units. वो आपको बेसिक क्राइटेरिया शिजेम्बो का जो बायोलॉजी से रिलेटेड है और जो टॉपिक जिन पे आपने फोकस करना है ओवरव्यू एक देंगे. एंड प्लीज डोंट रिलाई ऑन दैट पीडीएफ ना, आप अपनी बुक्स जो आपका मेन रिसोर्स है उस पे रहिएगा. ये हम एक इनसाइट आप एक व्यू दे रहे हैं कि ऐसा एग्जाम आएगा और आपने ऐसे प्रिपरेशन करनी है. थैंक यू सर, वी वेलकम यू. Yeah. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I am Gohar Ali, a nursing lecturer from Advanced Institute of Health and Sciences, Islamabad. And today I am here to discuss about biology session regarding your upcoming शिजेम्बो एंट्री टेस्ट. तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का जो एंट्री टेस्ट है उसमें बायोलॉजी की एमसीक्यूज जो है वो 30% आते हैं. मतलब 100 एमसीक्यूज में से 30 एमसीक्यूज जो है वो बायोलॉजी से आएंगे. तो इसके लिए आपकी जो है अटेंशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो मेन की पॉइंट्स है वो डिस्कस कर ले, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की वजह से हमारे पास फिर इतना टाइम नहीं कि सारे टॉपिक्स को डिटेल से जो है वो डिस्क्राइब करें. लेकिन आप लोगों ने मेन पॉइंट्स पिक करने हैं, कंसेप्ट याद से लेना है और फिर खुद भी डिटेल से पढ़ना है. तो 30% का जो सेशन है बायोलॉजी का उसमें सबसे पहले हम ब्लड डिस्कस करेंगे. ब्लड की कंपोजिशन क्या है, इसके फंक्शंस क्या है. फिर दूसरा जो टॉपिक है वो सेल बायोलॉजी के रिलेटेड होगा और थर्ड लास्ट टॉपिक जो है वो फिर बैक्टीरियोलॉजी के बारे में होगा. तो चले स्टार्ट करते हैं. तो ब्लड के बारे में हम डिस्कस करेंगे. हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो है कि ब्लड की जो मेजर कंपोनेंट्स है वो क्या है, इनकी परसेंटेजेस क्या है ब्लड में, और फिर प्लाज्मा की फंक्शंस क्या है जो ब्लड का एक पार्ट है, और रेड ब्लड सेल्स की फंक्शंस क्या है, वाइट ब्लड सेल्स के फंक्शन क्या है. इसी तरह प्लेटलेट्स के फंक्शन और इम्पोर्टेंस भी हम डिस्कस करेंगे इसमें इंशाल्लाह. तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछ ले एग्जाम में या एग्जाम में आ जाए कि ब्लड है क्या, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, सिस्टम है, क्या है, तो आपने उनको बताना है कि ब्लड हमारे पास जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है.
और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक एवरेज 70 kg पर्सन में 5 to 6 लीटर्स का ब्लड होता है। अब एमसीक्यूज आते हैं इससे कि ब्लड की जो परसेंटेज है वो क्या है। तो अगर वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स की बात की जाए तीनों आपस में, तो ये 45% है, ठीक है। और 55% जो रहता है वो क्या है, वो प्लाज्मा है। फिर ब्लड का जो नॉर्मल पीएच है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक है। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है बॉडी में कहाँ पे होती है, तो ये जो बोन्स है वहाँ पे, बोन मेरो में, एक येलो बोन मेरो है, एक रेड बोन मेरो है। तो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन जो है वो रेड बोन मेरो में होती है। अगर आप साइड पे या पिक्चर को देख ले तो इसमें आपको नजर आ जाएगा ये वाला पार्ट जो है कि प्लाज्मा आपके पास ये सेंट्रीफ्यूजन मशीन के साथ जो है स्पिन किया है इसको, तो इसमें ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको नजर आएंगे। तो 55% आपके पास येलो कलर का जो है वो प्लाज्मा नजर आ रहा है, ठीक है। और बाकी 45% ब्लड सेल्स है। लेकिन इसमें ये भी याद रखें कि ब्लड सेल्स में अगर हम 100% में ले लें ब्लड सेल्स, तो इसमें 99% जो है वो आपके पास रेड ब्लड सेल्स है। बाकी जो 1% रहता है वो आपके पास प्लेटलेट्स है एंड वाइट ब्लड सेल्स है। ठीक है, चलो एमसीक्यूज में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड ग्रुप्स के बारे में आपको पता जो है वो होना चाहिए। इसमें जो यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है, वो ओ नेगेटिव है। मतलब ओ नेगेटिव ब्लड वाला जो पर्सन होगा वो हर किसी को अपना ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है। और बिल्कुल इसी तरह यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है, जो हर किसी से ब्लड जो है रिसीव कर सकता है, वो AB पॉजिटिव वाला पेशेंट है। अब देखिए ब्लड सेल्स की परसेंटेजेस की बात हमने की। अब ब्लड प्लाज्मा की बात अगर की जाए तो ये भी प्रीवियस टेस्ट में एक एमसीक्यू आया था कि ब्लड प्लाज्मा का जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है, या ज़्यादा परसेंटेज में जो है वो है वाटर। आपके पास 90% प्लाज्मा में वाटर होता है और 10% बाकी डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं, जिस तरह प्रोटीन्स हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गई, ग्लूकोज हो गई, डिफरेंट एंटीबॉडीज, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें प्लाज्मा में ही पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड का जो नॉर्मल फंक्शन है वो न्यूट्रिएंट्स को, एंटीबॉडीज को, हार्मोन्स को वो ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो ब्लड सेल्स को अगर छोड़ दिया जाए तो प्लाज्मा में ये सारे कंपोनेंट्स जो है इन्वॉल्व है, लेकिन अबंडेंट जो है वो ब्लड प्लाज्मा है जो 90% है। अच्छा, ये भी स्लाइड थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेपर में आपके पास आ जाए कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कौन करता है, प्लेटलेट्स जो है कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो ये जिन सेल्स से बोन मेरो में जिनकी प्रोडक्शन होती है, तो उन सेल्स को स्टेम सेल्स कहा जाता है जो रेड बोन मेरो में है। तो प्लेटलेट्स की जो प्रोडक्शन है, वो मेगा कैरियोब्लास्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसी तरह जो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन है वो एरिथ्रोब्लास्ट से आ रहा है, और जो व्हाइट ब्लड सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स है, बेसोफिल, एजिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, ये माइलोब्लास्ट से आ रही है। और इसी तरह जो लिम्फोब्लास्ट है, स्लाइड शो इसको चेक कर, बच्चों की तरफ से क्वेश्चन आ रहा है कि वो स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है उसमें, तो इसको मेरे ख्याल क्लोज करके इसको इधर से क्लोज कर, स्लाइड शो वापस कर रही है, स्लाइड शो को स्लाइड करता है। अभी आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा इसमें?
स्लाइड शो पे तो जी सही है, अभी ठीक है? अब सही है। नहीं, स्लाइड शो पे नहीं, स्लाइड शो है, यहाँ पे नहीं अच्छा वो नहीं हो रहा, लेकिन चले एटलीस्ट स्लाइड तो आपका आ गया। नहीं आई। चलो इसको स्लाइड शो से आउट ही कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे वो फुल स्क्रीन जो है वो थोड़ा मिस हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि फुल स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा? ये दोबारा बंद करके दोबारा शेयर करें। थोड़ा वेट कर रहे हैं, ताकि हमारी कोशिश है कि आपके साथ फुल स्क्रीन पे जो है वो डिस्कस की जाए। सब चलो स्लाइड शो का इफेक्ट चलेंगे, इवन गैप करेंगे इफेक्ट्स। अच्छा इफेक्ट्स हो जाएगी इस इसमें कहाँ पर इफेक्ट्स देख नहीं देता। ठीक है, स्क्रीन में शेयर की। ठीक है बस इसी पे कुछ चला, लेकिन स्लाइड पर आपको हम दोबारा ये स्लाइड्स हम उनको, जो बच्चे हैं ना उनको भेज भी देंगे। चले वो फुल स्क्रीन पे जो है वो यहाँ पे इशू आ रहा है, तो आपके साथ ये स्लाइड्स जो है वो शेयर की जाएगी। आप इस तरह कर ले कि फुल स्क्रीन पे ये स्लाइड लगा रहे, तो फिर आपको जो है प्रोमिनेंट नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन की बात हो रही थी। तो ब्लड सेल्स जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं बोन मेरो में होते हैं, और बोन मेरो में कौन प्रोड्यूस करता है? वो स्टेम सेल्स है। ठीक है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि प्लेटलेट्स जो है वो मेगा कार्डियोब्लास्ट से आते हैं, रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स जो है वो एरिथ्रोब्लास्ट से, फिर व्हाइट ब्लड सेल्स के जो टाइप्स है बेसोफिल, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक हो गया, और मोनोसाइट वो माइलोब्लास्ट से आते हैं, और जो लिम्फोसाइट्स है बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स जिनका इम्यूनिटी में बहुत ही वाइटल रोल है वो लिम्फोब्लास्ट से आते हैं। अगर ब्लड सेल्स और इसकी जो फंक्शंस है उसकी बात की जाए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स के बारे में। अच्छा, ये भी नोट करें कि जो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इनका जो सेकंड नेम है वो भी आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि पेपर में अक्सर आपको वो कंफ्यूज करने के लिए सेकंड नेम जो है वो मेंशन करते हैं। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन होती है बोन मेरो में, उस प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। ठीक है, और ये कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रेगुलेट करता है, जो आपकी किडनी से सिक्रेट होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बायोकनकेव है, आपको साइड में यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। जब ये सेल्स मैच्योर हो जाते हैं तो न्यूक्लियस इसमें नहीं होता, ताकि ये अपनी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उस पर स्ट्रॉन्ग फोकस रखे। इनकी जो लाइफ स्पेन है 120 डेज एवरेज लाइफ स्पेन है, और जब ये ओल्ड हो जाते हैं तो फिर ये भी आपको याद रहना चाहिए कि मैन ये स्प्लीन में और लीवर में ये थ्रू मैक्रोफेजेस वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है, कि यहाँ पे आरबीसीज की जो फाइनल स्टेज है वो यहाँ पे ही होता है। अब रेड ब्लड सेल्स, आप सबको पता होना चाहिए कि रेड ब्लड सेल्स में हमारे पास जो है एक हीमोग्लोबिन है। ठीक हो गया, और हीमोग्लोबिन का फंक्शन यही होता है कि वो आपकी बॉडी में जो गैसेस है, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो ट्रांसपोर्ट करे, और ये आपके ब्लड पीएच को भी जो है ब्लड 7.35 से जो 7.45 है वो पीएच भी मेंटेन रखता है। जब आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाए तो उसी कंडीशन को एनीमिया बोलते हैं, और जब ज्यादा हो जाए तो उसी कंडीशन को पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। ठीक है, अब व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में अगर बात की जाए, इसको जो है ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है।
वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को ल्यूकोपोयोसिस कहा जाता है। जिस तरह हमने बताया कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को एरिथ्रोपोयोसिस, तो वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को ल्यूकोपोयोसिस। और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि हमारी बॉडी में जो है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट इसका बहुत इम्पोर्टेंट ही रोल है। जब इन्फेक्शन में ये बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है, और जब किसी डिजीज़ की या एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये बॉडी में कम हो जाए तो उस कंडीशन को ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। एंड इट्स लाइफ स्पैन अबाउट 3 to 7 days। ये सब के आपको याद रहने चाहिए कि प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन कितना है, आरबीसीज का, डब्ल्यूबीसीज का। ठीक है, अब वाइट ब्लड सेल्स एमसीक्यू भी शंभू के टेस्ट में आया हुआ था कि इसमें ए ग्रेनुलोसाइट्स कौन से और ग्रेनुलोसाइट्स, मतलब इनके जो सेल्स है इनमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट केमिकल्स तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको किल करने के लिए रिलीज करता है। ठीक है, तो जो ग्रेनुलोसाइट्स है उसमें एक बेसोफिल है, एक इजिनोफिल है और थर्ड पे न्यूट्रोफिल है। और जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, ए ग्रेनुलोसाइट्स है, तो आपके लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट है। ठीक है, ये नोट्स है, ये भी आप अगर देख ले तो बी सेल जो है वो मेच्योर होते हैं बोन मेरो में, और जो टी सेल्स है वो फिर बोन मेरो से जब इमेच्योर आते हैं तो ये थाइमस ग्लैंड में फिर मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है, फिर प्लेटलेट्स की अगर बात की जाए, प्लेटलेट्स का जो सेकंड नेम है वो है थ्रोम्बोसाइट्स। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, एन्यूक्लिएटेड होते हैं, और इनका जो लाइफ स्पैन है वो 7 to 10 days है। और प्लेटलेट्स का जो इम्पोर्टेंट एंड मेन फंक्शन है वो है हेमोस्टेसिस, मीन ब्लड क्लॉटिंग में। जब कोई वॉन्ड हो, कोई इंजरी हो जाए और वहाँ पे क्लॉट बनाना हो, ठीक है, तो प्लेटलेट्स जो है वो इनका मेन फंक्शन जो है वो क्लॉट बनाना है। और जिस तरह आरबीसीज की जो डिग्रेडेशन होती थी स्प्लीन एंड लीवर में, इसी तरह प्लेटलेट्स की भी होती है स्प्लीन एंड लीवर में। अगर हम समराइज कर ले ब्लड के फंक्शंस को, तो ब्लड में हमारे पास आरबीसीज जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, वाइट ब्लड सेल्स जो है वो इम्यूनिटी है आपका इन्फेक्शन के खिलाफ जो है वो फाइट करते हैं, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग, और इसी तरह आपका पूरा ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जितनी भी चीज़ें आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर है वो थ्रू ब्लड ही जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ब्लड पीएच भी मेंटेन रखता है। इसके साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर जो है वो भी ब्लड के थ्रू हम जो है मेंटेन होती है, जिस तरह स्वेटिंग हो गया। ठीक है, रेगुलेट बॉडी फ्लूइड बैलेंस, और बॉडी की जो फ्लूइड की क्वांटिटी है उसको बैलेंस रखने के लिए भी ब्लड का जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर ज़्यादा फ्लूइड है तो थ्रू किडनीज ब्लड के थ्रू हो जाता है और एक्सक्रीट होता है, और अगर कम है बॉडी में तो फिर वो वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में पूरी बॉडी की तरफ जो है वो स्प्रेड होता है। तो ये ब्लड के बारे में की पॉइंट्स थे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा डिटेल से भी पढ़ लें इसको। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सेल बायोलॉजी है। सेल सबको पता होना चाहिए और पता होगा भी कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि सेल के बगैर जो है वो जिंदगी पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, फिर सेल थ्योरी का स्टेटमेंट क्या कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कि सारी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से बने हुए हैं, चाहे एक सेल हो, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, और वो प्री एग्जिस्टिंग जो सेल्स है वहां से ही आएंगे। ठीक है, ये डायग्राम है प्लांट सेल स्ट्रक्चर का, एनिमल सेल स्ट्रक्चर का, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स से। अभी हम इनके जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स है वो भी डिस्कस करेंगे कि इनके फंक्शंस क्या है। की पॉइंट्स पे आ जाए सेल के बारे में, तो जिस तरह हमने डिस्कस कर लिया कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। फिर जो एनिमल एंड प्लांट सेल है उनको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब ये है कि इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड जितने भी ऑर्गेनेल्स है, जिस तरह राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, ये सारी चीज़ें इसमें है, तो इनको यूकैरियोटिक कहा जाता है। और जो बैक्टीरियल सेल्स है वो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस भी नहीं होता, और इसमें जो ज़्यादातर ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मिस होते हैं, वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर एनिमल सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर की जाए तो ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनिमल सेल में जो है वो सेल वॉल नहीं होता, ये प्लांट सेल में होता है। इसमें सेंट्रियोल्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये हेटेरोट्रॉपिक है, मतलब ये दूसरों पे रिले करता है अपनी जो एनर्जी है और प्रोसेस है उनके लिए, और ये जब एनर्जी स्टोर करती है तो उस फॉर्म को ग्लाइकोजन कहा जाता है।
इसी तरह प्लांट सेल की अगर बात की जाए तो वहाँ पे सेल वॉल नहीं था एनिमल सेल में, यहाँ पे सेल वॉल है जो सेल्यूलोज से बना हुआ है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो या क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। इसमें लार्ज वैक्यूल है, ये ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है, दूसरों पे रिले नहीं करता है, एंड स्टोर एनर्जी एज अ स्टार्च। बैक्टीरियल सेल्स की अगर बात की जाए तो ये यूकैरियोटिक नहीं, ये प्रोकैरियोटिक है। इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता और इसका जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ है, ये याद रखें। प्लांट सेल का और इस प्लांट सेल का जो है सेल्यूलोज से बना हुआ है और बैक्टीरियल सेल का पेप्टाइडोग्लाइकेन से जो है बना हुआ है। स्मॉल साइज का है और इसमें जो सेल डिवीजन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया में, वो थ्रू बाइनरी फिजन, जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है वो रिप्लिकेट होता है और न्यू सेल वहां से फैलाता है। अब डायग्राम में अगर आप देख ले प्लांट वर्सेस एनिमल सेल, तो सेल वॉल जो है प्लांट की वो एक रेक्टेंगल शेप है, रिजिड शेप है थ्रू बिकॉज ऑफ सेल वॉल। इसमें जो मेन आपको सेंटर में नजर आएगा ये वैक्यूल है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एक ही वैक्यूल होता है। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन इसका यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस है। और इसमें क्लोरोप्लास्ट है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होते और इसमें लाइसोसोम भी नहीं होते। एनिमल सेल की बात की जाए तो इसमें सेल वॉल बिल्कुल नहीं है, इसमें सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर है, इसमें छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है, इसमें लाइसोसोम है, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम। स्ट्रक्चर डिटेल से फिर देख ले ताकि आपको क्लियर हो। ये स्लाइड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, क्योंकि इसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स है और जो मेन फंक्शन है वो है। तो ये जरा डिटेल से आप लोग देख ले। जिस तरह न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी सेल की जितनी भी डीएनए एक्टिविटीज है, सेल को क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी न्यूक्लियस से ही जो है वो कंट्रोल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, आपकी सेल को, आपकी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है, तो वो किसका काम है? वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। फिर इसके लिए प्रोटीन चाहिए होती है। प्रोटीन कौन बनाता है? वो राइबोसोम बनाता है। प्रोटीन प्रोसेस कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लिपिड सिंथेसिस करता है, डिटॉक्सिफिकेशन कर लेता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स है, इसको आप डिटेल से देख ले कि इनका जो है मेन फंक्शन क्या है। और यहाँ पे अगर आप पर्पल कलर में देख ले तो इनका सेकंड नेम भी मेंशन है। जिस तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात जो है वो उसे हम लिपिड फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो काइंडली ये स्लाइड डिटेल से रिव्यू कर ले, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है कि डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली की जो है फंक्शंस क्या है। और यहाँ से ही 5 MCQs इस एक ही स्लाइड से आ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। अब देख ले प्लांट और एनिमल सेल के बीच जो डिफरेंस है, सेल वॉल प्लांट सेल में नहीं है, प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। क्लोरोप्लास्ट भी अगर आप देख ले तो एनिमल सेल में नहीं है। सेंट्रियोल जो है वो मेनली एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल जो है प्लांट सेल में एक वैक्यूल होता है और सेंटर में लार्ज एक वैक्यूल होता है, और एनिमल सेल्स में मल्टीपल स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, राइबोसोम इसमें साइटोप्लाज्मिक एंड क्लोरोप्लास्टिक है और इसमें साइटोप्लाज्मिक है। और ग्लाइसोसोम प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। नीचे ग्रीन में एक नोट है कि इन बैक्टीरिया सेल वॉल इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन आल्सो नोन एज म्यूरिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे अगर कोई पूछ ले एग्जाम में कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो किस चीज से बना हुआ है, तो वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ है। फिर एनिमल एंड प्लांट सेल की रिप्रोडक्शन की जब बात आती है तो एनिमल सेल में रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप्स का है, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस वो है जो हमारी बॉडी को ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए जो है क्रूशल है, और मियासिस वो है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपना नंबर जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि माइटोसिस जो है वो सोमेटिक बॉडी सेल्स में, जिस तरह स्किन, लीवर, मसल सेल्स, सोमेटिक बॉडी सेल्स वही सेल्स है जो रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है। ठीक है, प्लांट सेल्स की रिप्रोडक्शन की अगर बात की, अच्छा, मियोसिस जो है वो जर्म सेल्स में, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मेल में टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस कर लेता है और फीमेल में ओवरीज से जो है एग्स की प्रोडक्शन होती है। प्लांट सेल की अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो प्लांट सेल में भी रिपेयरिंग के लिए जो है और ग्रोथ के लिए वो माइटोसिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिस तरह रूट टिप्स, शूट टिप्स हो गए, उसमें होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स की वो फ्लावर्स में होती है। एंथर्स, पोलन्स, ठीक हो गया, ये मेल में, और ओवल एग्स ये फीमेल में।
तो ये प्लांट और एनिमल सेल के बारे में कुछ स्लाइड्स थी, काइंडली इनको डिटेल से जो है रिव्यू कर ले। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो बैक्टीरियोलॉजी के बारे में है। तो नाम से ही आपको पता चलता है कि बैक्टीरियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं, ठीक है, कि इनकी डिजीज को स्टडी कर लेते हैं डिटेल से। ये पूरा एक ब्रांच है जिसमें डिफरेंट स्पेशलिटीज की जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बैक्टीरिया है क्या, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और याद रखना कि ये यूकैरियोटिक नहीं है, ये प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस भी नहीं है और इसमें ज़्यादातर ऑर्गेनेल्स जो है वो मिसिंग होती है। इसकी साइज जो है वो 0.5 से 5 माइक्रोमीटर तक है। इसकी शेप को भी देख ले, किस तरह डीएनए लगा हुआ है, फ्लैजिला है, पैलस है, राइबोसोम, ठीक है, ताकि फिर इनके फंक्शंस आपको याद हो। अब जिस तरह बैक्टीरिया सेल हो गया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, जो एनिमल एंड प्लांट सेल्स है, उसके बीच में कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर सिमिलरिटीज पे आ जाए कि दोनों में सिमिलर क्या है, तो सिमिलर ये है दोनों में कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में है, साइटोप्लाज्म भी दोनों में है, राइबोसोम भी दोनों में है, और डीएनए भी दोनों में है, ठीक है, जो बीच में वेन डायग्राम में नजर आ रहा है आपको। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनकी बात की जाए तो वो स्मॉल है, ठीक है, न्यूक्लियस उसमें एब्सेंट है, डीएनए सर्कुलर है, इसमें क्रोमोसोम ये भी याद रखिए हेप्लॉइड क्रोमोसोम है, ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअली एसेक्सुअली बोथ मेथड से होता है। सेल डिवीजन जो है ये भी याद रखिए कि बाइनरी फिजन से होता है, और इनके एग्जांपल जो है बैक्टीरिया एंड आर्किया सेल्स है। यूकैरियोटिक सेल्स भी आप देख ले, जिस तरह हमारी सेल्स हो गई ह्यूमंस की, एनिमल्स के, प्लांट्स के, तो वो लार्ज है, आपके पास यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें, डीएनए वहाँ पे जो है सर्कुलर था, यहाँ पे लीनियर है, वहाँ पे हेप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम थे, यहाँ पे डिप्लॉइड नंबर है, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड जितनी भी ऑर्गेनेल्स है वो प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल्स में। यहाँ पे सेल डिवीजन जो है माइटोसिस से होता है, वहाँ पे बाइनरी फिजन से, और इसकी जो एग्जांपल है वो प्लांट एंड एनिमल सेल्स है। अब बैक्टीरियोलॉजी को हम पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि बैक्टीरिया की जितनी भी पार्ट्स है उनका हमें पता हो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का फंक्शन जो है वो क्या है। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है वो 2 टाइप्स का बना होता है, या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो लेयर है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है, ठीक है, और लेबोरेटरी में जब इनको टेस्ट किया जाए थ्रू एसिड तो ये पर्पल कलर जो है वो शो होती है। ऑन द अदर हैंड ग्राम नेगेटिव को अगर टेस्ट किया जाए तो ये पिंक जो है, पिंक कलर का नजर आता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो फास्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ है, और इसमें स्टेरोल्स नहीं होते, लेकिन माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया जो है, ये आपको याद रहना चाहिए कि बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन जो है फास्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है, लेकिन इसमें स्टेरोल्स नहीं होते। लेकिन एक बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा जिनमें स्टेरोल्स होते हैं। फिर जो कैप्सूल अराउंड जो है बैक्टीरिया बना हुआ है, या स्लाइम लेयर, वो बैक्टीरिया को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हम मेडिसिन देते हैं, डिफरेंट केमिकल्स जो है अप्लाई करते हैं, तो ये कैप्सूल जो है बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन करता है। फ्लैजिला जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है वो बैक्टीरिया की मूवमेंट के लिए है। पिली या फेम्ब्राई जो है वो एडहेशन एंड कंजुगेशन, दूसरे सेल्स के साथ जब ये अटैच होते हैं तो ये इसके लिए है। और प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, छोटे छोटे डीएनए इसमें है, वो इसलिए है ताकि बैक्टीरिया की जो अपनी वायरेंस है उसको स्प्रेड कर सके, वो कोई एंटीबायोटिक इस पे काम ना कर सके, ठीक है। तो प्लाज्मिड इसलिए है ताकि बैक्टीरिया की जो अपनी नेगेटिव इफेक्ट है वो स्ट्रांग हो और वो बॉडी में शो करे। अब बैक्टीरियल न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म की बात अगर की जाए तो ऑटोट्रॉफ्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो है यूटिलाइज करती है न्यूट्रिशन के लिए, और कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो है वो डिफरेंट केमिकल्स, और हेटरोट्रॉफ्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म पे जो है वो पाए जाते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म में, तो उसी हिसाब से वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स की अगर बात की जाए तो एक एरोबिक बैक्टीरिया है, एक एनएरोबिक है, और एक फैकल्टेटिव है। एरोबिक मीन इनके लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर ये सर्वाइव नहीं कर सकते। एनएरोब्स के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, ये वहाँ भी सर्वाइव कर सकते हैं। और फैकल्टेटिव ऐसे बैक्टीरिया है जो माहौल के जो इन्वायरमेंट मिलता है उनको उस लिहाज से स्विच होते हैं और
अपनी एनर्जी जो है वहाँ पे वो लेते हैं उस इन्वायरमेंट से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया जो है शेप्स के लिहाज से। हमारे पास मेन जो शेप्स है बैक्टीरिया के वो 3 टाइप्स है, एक है स्पेरिकल और कॉक्सी, सेकंड है रॉड शेप्ड बेसिलाई एंड थर्ड है स्पाइरल शेप्ड एंड अदर्स। और भी टाइप्स है लेकिन मेन आपके पास जो है ये 3 टाइप्स है। इस स्लाइड को अगर आप डिटेल से देख ले तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, माइक्रोकोकस ल्यूटस एंड स्ट्रेप्टोकोकस एरिस ये स्पेरिकल या कॉक्सी शेप है। ये सबको याद होने चाहिए तो कि आपको एग्जाम में आएगा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है कौन सा शेप का बैक्टीरिया है, स्पेरिकल है, रॉड शेप्ड है या कोई और शेप है। ठीक है, रॉड शेप की अगर बात की जाए तो बेसिलस एंथ्रेक्स है जो एंथ्रेक्स को कॉज कर लेता है, टाइफाइड को जो कॉज कर लेता है सैल्मोनेला टाइफाई, क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum ये भी एक टॉक्सिन्स है जो बॉडी में रिलीज कर लेता है और ये पैरालिसिस करता है, फूड पॉइजनिंग भी करता है। तो ये रॉड शेप्ड है। और स्पाइरल शेप्ड जो वाइब्राई कॉलरा है या कॉमा शेप्ड या स्पाइरल शेप्ड, तो ये कॉलरा को जो एक सीवियर टाइप का एक जीआई डिसऑर्डर है जिसमें लूज स्टूल जो है वो आती है। ये भी याद रखें कि जो स्टमक अल्सर्स है या स्टमक का जो इन्फेक्शन है वो जब ज़्यादा होते हैं तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है और ये स्पाइरल शेप्ड है। ठीक है, और साइफिलिस जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है वो भी स्पाइरल शेप्ड है। तो ये समराइज है, मेन पॉइंट्स है, ये आप लोगों को ज़रूर याद रहने चाहिए क्योंकि इनसे बहुत एमसीक्यूज जो है वो आते हैं। अब देख ले इस स्लाइड में जो है कॉमन बैक्टीरिया है। ठीक है, आपको एग्जाम में आ जाएगा फॉर एग्जांपल कि स्टेफिलोकोकस एरिस जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये ग्राम पॉजिटिव है। तो ये लिस्ट आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से है। और ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और आपकी नॉलेज के लिए ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एमसीक्यूज में आते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया कौन कौन सी डिजीज को कॉज करता है। ठीक है, तो इसमें कोई डिस्क्रिप्शन की बात नहीं है, बस जस्ट सिंपल आपने ये चार्ट जो है याद रखना है कि कौन सा बैक्टीरिया स्टेनिंग के लिए नेगेटिव है, पॉजिटिव है और कौन कौन से डिजीज को कॉज कर लेता है। ये आपके पास रेफरेंसेस है, यहाँ से आप डिटेल से जो है पढ़ सकते हैं। और लास्ट में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रीशियस टाइम का। कोशिश करें ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर की जाएगी, ये भी देखने हैं कि पॉइंट्स और इसके साथ साथ आपने डिटेल के साथ भी ये टॉपिक्स जो है तीनों स्टडी करने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Thank you so much, sir. Someone is asking कि प्लाज्मा का क्या रोल है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बिकॉज आई वाज अ लेक्चरर, मेरी आवाज सबको आ रही? ओके, प्लाज्मा बेसिकली ये चीज होती है कि ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट्स, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा वो कंपोनेंट है जो कि लिक्विड वाला होगा ब्लड के अंदर, और प्लाज्मा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि वॉइस में बहुत डिस्टॉर्शन है। Am I audible to everyone? Okay. प्लाज्मा वो कंपोनेंट, जल्दी से मैं बताऊंगी ताकि हम अपने आगे सेशन को वो कर सकें, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं नहीं चाह रही कि हम नजरअंदाज करें एक भी चीज को। प्लाज्मा वो कंपोनेंट है जो लिक्विड प्रोवाइड करता है। 55% आपका टोटल ब्लड का होता है वॉल्यूम, 45% आपके ब्लड सेल्स होते हैं। प्लाज्मा ही वो कंपोनेंट है जो कि आपके डेब्रिस को, बैक्टीरियाज को और बॉडी में कराता है मूव। इवन प्लाज्मा इज अ कंपोनेंट जो कि ना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, कुछ लोगों ने चैट में बोला कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लिक्विड विच विल हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म द हॉर्मोन्स। हमारे पास जो डिफरेंट हॉर्मोन्स है ना, केमिकल्स जो बॉडी में होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ऐसा लिक्विड कंपोनेंट है जो देगा, और कुछ प्रोटीन्स भी रहता है। और जो बच्चे का ये चीजें कहने कि हमें स्लाइड्स मिल जाए और टेस्ट मिल जाए, हमने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि हमारी जो टीम है, आप उनसे राब्ता कीजिएगा। डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल प्रोवाइडिंग यू दिस स्टफ।
नाउ हम एक छोटा सा ओवरव्यू करेंगे अपने एडवांस के टूर का. द मीडिया टीम विल हेल्प मी टू कनेक्ट यू विद दिस स्लाइड, ताकि आपको पता चले कि एडवांस है क्या, देखने में कैसा है, लोकेशन क्या है और हमारा बेसिक पर्पस क्या है. वो सीईओ ने और प्रिंसिपल ने बहुत अच्छे से बता दिया. हम एक वर्चुअल टूर करेंगे अपने एडवांस इंस्टीट्यूट का. सर आपने म्यूट किया हुआ, आवाज नहीं आ रही. रेंडर करेंगे कभी फिर चलाएंगे. Okay, this is our institute, which is located on the prime location. Japan Road पे हमारा institute वाक़या है. This is our meeting area, the auditorium with 100 seat capacity. This is our library, the function library. +2,000 हमारे पास books है. हमारे पास MLT की ये लैब जो फंक्शनल है. एंड दिस इज द स्टडी एरिया जो कि पीसफुल है और हमने अलग से बनाया हुआ है अदर देन द लाइब्रेरी, ताकि बच्चे आके अपना जो टास्क हैं या जो असाइनमेंट वगैरह. द डेंटल लैब, द DPT लैब, is a skill lab plus anatomy museum. Yes, this is private institute affiliated with the Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Medical University. This is the hostel facilities. And a large playing area. You can see कि इतना बड़ा एरिया है जिसपे आप अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हम कर सकते हैं. This is what the university feel like institute. थैंक यू पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स. ये एक छोटा सा टूर था हमारे इंस्टीट्यूट का, ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग क्या चीज़ें और कहाँ पे हैं और क्या चीज़ प्रोवाइड करें. नाउ आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर मोमिना मलिक. शी विल गाइड यू अबाउट द इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री करिकुलम. क्या टॉपिक्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो आएंगी, आपको हेल्प करेंगी. और डेफिनेटली बच्चों में बार बार आपको कह रही हूँ कि प्लीज़ हम आपको ये मटेरियल तो शेयर कर देंगे, बट डोंट rely on those material. ठीक है, आप अपनी जो बुक्स हैं उन पे फोकस करें और फॉर द क्विक गो थ्रू आप इन चीजों को और इन लेक्चर्स को देख सकते हैं. ओवर टू मैम मोमिना, प्लीज गाइड द स्टूडेंट्स. Assalamu alaikum everyone. A warm welcome to the Advanced Institute of Health Sciences, Islamabad. My name is Ms. Mohamna Malik. I'm here to guide you about the Shizengo test criteria of physics and chemistry, as well as of English. As you all are familiar, physics and chemistry I have read in the FSC as well as in matter. But if we talk about the whole pattern of Shizengo test, the weightage of chemistry is 30%. So if you have well knowledge of chemistry, you can achieve very good marks in the Shizengo test, and the passing criteria is 50%. If you gain 30% marks in chemistry, then you only need 20%. Then you have to focus mostly on biology and chemistry. The reason is that the bio contains 30% as well as chemistry 30%. You can easily gain 60% marks in the Shizengo test. Before starting chemistry overview and lecture, I want to tell you some basic knowledge about English, which is part of the Shizengo test. In the Shizengo criteria, English weightage is also very good, and you have general knowledge of English grammar, which you already studied in. हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इंग्लिश वाला पोर्शन, जिसमें आपने बेसिक FSC वाली इंग्लिश ही देखनी है.
तो अगर हम बात करें टेंसेस की तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैकबोन ऑफ द इंग्लिश है। जिस बंदे को भी टेंसेस आ जाते हैं दे कैन अचीव द गुड मार्क्स इन द इंग्लिश। तो हम लोगों ने अपनी डेली लाइफ में अगर देखें तो जैसे टेंसेस आर जस्ट लाइक अ क्लॉक, जैसे हमारी जिंदगी का टाइम चल रहा होता है, घड़ी की सुई चल रही थी, इसी तरह टेंसेस भी हैं। कुछ जिंदगी हम गुजार चुके हैं, कुछ हम गुजार रहे हैं और रिमेनिंग हमारी रहती है। लाइक दैट टेंसेस आर प्रेजेंट। जो अभी हम लोग आपस में वेबिनार में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट। तो इस प्रेजेंट के भी आगे से 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आपने टेंसेस में जस्ट बेसिक लर्निंग क्या करनी है कि आपने हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट और फॉर्म ऑफ वर्ब याद रखनी है कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। अगर ये आपको याद हो जाते तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू सिलेक्ट एनी राइट एमसीक्यूज इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए आपने किसके ऊपर मेहनत करनी है, टेंसेस के रूल्स एंड रेगुलेशन पे। और पहले आपने किसी एक सेंटेंस को कैप्चर करके उसी के ऊपर पूरा सारे टेंसेस को अप्लाई करना है। जस्ट लाइक मैं कहती हूँ वो रस्सी फलांगती है, तो मैंने इसी सेंटेंस को आगे कंटिन्यू रखना है कि वो रस्सी फलांग रही है, वो रस्सी फलांग चुकी है, वो रस्सी फलांगती रही है। तो दैट मेक वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड which kind of verb I am using in this sentence in present simple or continuous or perfect continuous। तो आपने एक ही सेंटेंस के आगे से डिफरेंट उसके एक जुमले को आपने लेना है और उसके आगे से मुख्तलिफ टेंसेस बनाने हैं। तो जब आप उसको हाईलाइट करेंगे हाइलाइटर के साथ तो दैट मेक सेंस कि हमारे इस टेंस में उस टेंस में क्या फर्क है। गॉट इट? ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है या हम लोग कह सकते हैं कि नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री 30% उसका अगर वेटेज है तो उसमें हम लोगों ने ये देखना होता है कि हमारे पास केमिस्ट्री में हम कैसे करते हैं, हमारे पास सिलेबस क्या है 30% वेटेज के साथ। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, स्टेट ऑफ मैटर, केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में हमारे पास क्या है कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो एज वी ऑलरेडी नो कि केमिस्ट्री ब्रांच वो साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट, मॉलिक्यूल, आटम, एलिमेंट्स के रिलेशनशिप्स, उनके केमिकल रिएक्शन, उनके केमिकल बॉन्डिंग को देखते हैं कि इनके आपस में क्या रिलेशनशिप है। और हम देखते हैं कि केमिस्ट्री में एक जो आटम है उसकी क्या स्ट्रक्चर है, एटॉमिक नंबर किसी के भी क्या है। ठीक है, उसके बाद हम मैथ नंबर देखते हैं। ये सारी बेसिक चीजें हमें आनी चाहिए फॉर एमसीक्यूज। तो आपने पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से याद करना है फॉर टेस्ट। उसमें बहुत से एमसीक्यूज ऐसे आते हैं कि एटॉमिक मास बता दें, फाइंड करें न्यूट्रॉन, वो एक स्टेटमेंट आपको दे देते हैं कि इसका प्रोटॉन 7 है, इसका जो एटॉमिक मास है वो 6 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यू विल बी एलिजिबल कि आप लोग को उस टाइम इसके फॉर्मूले पुट करना और उसमें से वैल्यू निकालना आनी चाहिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर बेसिकली किसी भी एटम का मास होता है जिसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं। तो इसका फार्मूला सिंपल क्या है कि A इज इक्वल टू Z प्लस न्यूट्रॉन। तो यू हैव टू मेमोराइज दिस फार्मूला। अगर आपको ये फार्मूला आता होगा तो आई गेस कि आप 5 से 6 एमसीक्यूज इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, इसी की स्टेटमेंट को उन्होंने चेंज करके भी दे सकते कि फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पुट करके इज इक्वल टू A माइनस Z। तो फिर हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएगा। किसी भी एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और आपको एज यू नो कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है और ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ केमिस्ट्री है। तो इसका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऑर्बिट इन एटॉमिक न्यूक्लियस। तो ये बाहर हमारे शेल में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एलिमेंट जो होता है वो एटम का पार्ट होता है किसी भी का। तो जब हमें कोई कहता है कि मॉलिक्यूल फाइंड करो तो हमने 2 एलिमेंट का रिएक्शन कराना होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2 प्लस O इज इक्वल टू H2O। ये जो 2 मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जब आपस में मिले तो उन्होंने हमें क्या दिया, मॉलिक्यूल दिया, दैट इज वाटर। तो इस तरह से आपने ट्रिक करके इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो बेसिकली है स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज इनके आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप मास क्या होता है, आइसोटोप अबंडेंस क्या है। तो सबसे पहले आपको इनकी बेसिक इजी वर्डिंग में डेफिनेशन आनी चाहिए कि आइसोटोप्स होते हैं वो आटम होते हैं जिनके एलिमेंट सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और जो मास होता है वो उनका क्या होता है, स्पेसिफिक आइसोटोप्स के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैं।
ठीक है, तो आपने आइसोटोप में देखना है कि आइसोटोप्स में हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सेम होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं कि आइसोटोप्स में आइसोबार क्या है, तो इसके डिफरेंट एटॉमिक नंबर हैं लेकिन मास नंबर सेम है। और आइसोटोप में क्या है कि सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट मास नंबर है। इस तरह एमसीक्यूज कंफ्यूजिंग आते हैं कि वो डेफिनेशन आइसोबार की दे के ऑप्शन आइसोटोप का दे देंगे, तो आप लोग उस टाइम कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए आपने इसके लिए एक टेबल बनाना है, एक साइड पे अपने आइसोबार, आइसोटोप्स, एलिमेंट, आटम, मॉलिक्यूल सारी चीजें लिखी, आगे उनकी डेफिनेशन लिखनी है और उनको गौर से देखना है कि इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है। लाइक इसमें डिफरेंट मास नंबर है इन आइसोटोप और डिफरेंट एटॉमिक नंबर है इन आइसोबार। और एट द टाइम ऑफ एग्जाम ड्यू टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी आप लोग फॉरगेट कर दोगे कि हमारे पास एटॉमिक नंबर किस में डिफरेंट था, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो लेकिन आपने टेबल बना के देखा होगा घर में, तो वो आपके दिमाग में रिफ्लेक्शन आ जाएगा, नहीं मैंने तो अपने बॉक्स में इसको हाईलाइट किया था, तो दिस इज द डिफरेंट मास नंबर लाइंग द आइसोटोप्स, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो अगर हम इसी तरह बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट की, तो एटॉमिक मास यूनिट वो मास यूनिट होती है जो मास ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल हमें दिखाती है। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है कि हमारे पास जो स्टेबल कार्बन C12 है उसके साथ हम किसी भी एटम के मास को कंपेयर करते हैं। तो हम कहते हैं कि तराजू लिया, उसकी एक साइड पे हमने C12 रख दिया, दूसरी तरफ हमने कोई और एटम या मॉलिक्यूल रखा, तो जो उसकी रिजल्ट आएगा हमने देखने कि वो 12 से ज्यादा है या कम है। अगर तो वो 12 से ज्यादा है तो हम कहेंगे ट्वाइस देन द स्टेबल कार्बन एटम, अगर लेस है तो हम कहेंगे लेस देन स्टेबल कार्बन एटम है। Thank you so much. The syllabus of chemistry is completed. I want to share some my personal experience and personal habit with you all. बेसिकली हम लोगों का अक्सर ये बात होती है कि हम सबक तो याद करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग माय एकेडमिक एंड ड्यूरिंग सम ऑफ माय क्लास फेलोज इवन ये कंप्लेन कर रहे होते हैं टीचर से कि हम लोग जो भी याद करते हैं हमें भूल जाते हैं। तो द रीजन इज दैट के अटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने कब किस टाइम कितना पढ़ना है। तो जब हमारा जो ब्रेन है, बीइंग अ न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, मैंने एमएस में ये चीज पढ़ी है कि हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो ट्रेन होते हैं हर चीज के लिए। आप में से अगर कोई ड्राइवर है तो यू नो कि कोई भी जगह पे हो तो आप इजीली ड्राइव कर लो कि आपका ब्रेन आपको इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आपकी हैंड की करवा देता है कि स्टीयरिंग को इधर टर्न करो, इधर ग्रे लगाओ, इधर क्लच लगाओ। एज इट इज जब हम लोग सबक पढ़ते हैं रात के टाइम, जब सारे सो जाते हैं, खामोशी होती है और हम लोग पढ़ के सो जाते हैं, तो वो हमारे ब्रेन के अंदर रिटेन हो जाता है फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जब हम लोग सुबह उठ के नमाज पढ़ने के बाद वो सबक दोबारा से पढ़ते हैं तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। और जो हम लोग दिन को विद ऑडियंस और विद फैमिली मेंबर या विद फ्रेंड्स बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है फॉर सम टाइम। वो हमें शायद एग्जाम में याद भी हो, हम अच्छे स्कोर भी ले लें, लेकिन वो हमारे थ्रू आउट लाइफ हमारे साथ नहीं चलता। तो यू शुड डेवलप द हैबिट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर डूइंग प्रेयर। तो आप अपना लेक्चर 2 से 3 घंटे याद करो, तो इस तरह से आप कम टाइम में ज्यादा सबक पढ़ सकते हो। ठीक है, डू स्मार्ट वर्क इन योर लाइफ। बाकी अगर आप फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के 6 घंटे भी पढ़ते रहेंगे तो आपको 5 मिनट का भी सबक याद नहीं होगा। तो ट्राई टू डेवलप दिस हैबिट। As well as one thing more कि whenever you start to study तो आप अपने पास चॉकलेट और कॉफी या चाय जरूर रखो, ताकि it boosts the brain utilize energy of the body। तो जब हम अपने ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो ज्यादा एक्टिव होकर काम करता है। तो जब हम लोग एक्टिव हो जाते हैं तो हमारी मेमोरी स्टोरेज इंक्रीज हो जाता है, इनहांस हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने साथ इस तरह की आइटम्स रखनी है जो आपको फ्रेश रखे। और अगर आपको फील हो गया आपको हेडिक हो रहा है या आप बोर हो रहे हैं, आपको सबक नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है कि वॉक करना शुरू कर देनी है, अपनी जगह को चेंज करना है और डीप ब्रीथिंग करनी है। फिजिक्स में हम लोग लॉ ऑफ मोशन वेक्टर एंड स्केलर पढ़ेंगे फॉर दिस इज टेस्ट। इसकी वेटेज जो है वो हमारे पास 10% है। इसमें मोशन हम सबसे पहले देखते हैं। आपको पता है मोशन इज अ मूवमेंट ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी मोशन हम लोग जब ग्रेविटी की वजह से होता है तो हमारे पास मोशन होता है। इसी के अकॉर्डिंग न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन बनाए हैं। ठीक है, उसको जो पहला लॉ ऑफ मोशन है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, दूसरे को लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन, तीसरे को एक्शन एंड रिएक्शन। तो आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, तो उसको आपने अच्छी डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ याद करना है। आई विल प्रोवाइड यू दिस स्टफ आल्सो एज वेल, तो आपने इसको रीड आउट कर लेना। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में हमारे पास क्या होता है कि स्केलर वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जिसमें जैसे डिस्टेंस, स्पीड, मास, टेम्परेचर, टाइम है, और इसमें डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो आपने इसको भी देखना है। और
ये सारे जो लेक्चर है मैंने पंजाब करिकुलम और टेक्स्ट बुक बोर्ड से बनाए हैं, तो आप लोगों को इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ यू आर फ्री टू आस्क। और सेकेंडली आपने अपनी हैबिट ये डेवलप करनी है कि जब आप लोग सबक याद करो उसको राइटिंग में पुट करो, ठीक है, बिकॉज राइटिंग इनहांस योर नॉलेज एंड रिटेंशन ऑफ द मेमोरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। स्टूडेंट्स प्लीज आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें, हमने आप लोग के लिए ये चीजें डिजाइन की हुई है। वी हैव द स्पोकन पर्सन, अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरीज है सब्जेक्ट से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आवर टीम विल शेयर, हम आपके साथ एक मॉक टेस्ट शेयर करेंगे जो कि 100 MCQ का होगा। हमारे जो एक्सपर्टीज है वो बैठे हुए हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। रिव्यू करना है, मैं आपको ये नहीं करके FSC